शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नमुपशान्तये दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गणपति बप्पा मोरया श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. So warm welcome to all of you all. A small request, whoever can and is it if possible can keep the camera on. I feel like talking to somebody rather than just photographs. Yeah, whenever possible, and if it is possible, you all can keep your camera on. You can keep your audio mute if it's convenient. We have covered 5 sessions on Sai Baba. I thought I will cover today's session, 6th, and then next Saturday, instead of Sunday I had some plan. So on Saturday I thought I will cover the Purti, some Leela, and then try and finish the Samadhi Parva and end the part 1 of our story of Sai Baba. If that's permitted, I like to do that. You can always take up part 2 a little later, and maybe gives us an opportunity to cover some other saint also. So since of late I've been sending the videos and the links to a few select friends and groups. So there have been some friends who kind of call back, acquaintances who call back, ask questions, doubts as to what is it that I'm actually doing. So one of the friends actually asked me how much do I pay to join the sessions, and I was like, I couldn't resist my laughter. I said the karuna and anugrah that the saints have done on us has been nishulka. उन्होंने जो हम पर अनुग्रह किया या करुणा किया वो निशुल्क है. They didn't even expect anything back other than our bhakti, right? उनका कहानी, उनके करुणा जो हम पर किया वो बताने के लिए अगर मैं चार्ज करना चालू करूँ तो महापाप हो जाएगा, right? So I said that does not even crossed my mind, and something that I can never do. I am talking about karuna and anugrah that they are blessed without charging, and if I were to charge for say narrating that, it will be blasphemous. So I think that is where it rests. So he said, okay, he will try and at least, if not join, at least try and look at the videos, is what he told. One more friend, okay, he said he came to know about this from another common friend. So he said, Harsha, I came to know that you are running some philosophical classes. I said, I am not running any classes. Okay, and philosophy to dur ki baat, I don't even know any philosophy. I don't know Advaita, Vishishtadvaita, Dvaita, I don't know anything. What will I tell people who know more than me? There's no way running any classes or anything. All we are doing is really just a storytelling session. I happened to read, or I have, as a part of the growing up process, came to know of a few stories or heard a few pravachans from some senior pravachankar. जितना मेरे अल्प बुद्धि को समझ आया वो मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ. मैं अपने मन की भी कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ. I think that is exactly what it is, right? मैं कोई साधना नहीं करता हूँ. I don't even know bhakti, forget karma marga and jnana marga, nothing. Right? I mean, पूजा जप तप नेम आचारा नहीं जानत हूँ दास तुम्हारा. बजरंग बाण में I think there is a sentence where it says, I don't know पूजा जप तप नेम नाम का आचरण करना, ये सब मैं कुछ नहीं जानता हूँ. मुझे सिर्फ इतना पता है हनुमंता तुमको आके मेरी मदद करना है. That is all I know, and that is all we just do, right? That is exactly is the feeling through which we are narrating these stories. So let's cover a couple of doubts, funny ones that people come back with. Today I thought, if you all allow me,
I actually have an international conference that is going on for professional accountants, okay, for the last 2 days, and it is there today and tomorrow also. It's called as the World Congress of Accountants. India has got this opportunity after 118 years, okay. So it's happening in Mumbai, okay. So I'm attending that. So I might want to take this session. The session would have started there around 10:30. I might want to take this session if you all allow me. 1 घंटा या 1 से थोड़ा ज़्यादा मैं करके आज थोड़ा ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ. एंड देन अगला वाला मैं सैटरडे को लेने की कोशिश करता हूँ, सैटरडे इवनिंग, इफ यू ऑल परमिट मी. सैटरडे जरूर अटेंड कीजिए, बिकॉज सैटरडे में आई एम प्लानिंग टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट उपदेश दैट बाबा गेव. बाबा का जो सबसे मूल मंत्र, या उन्होंने किसी को कभी कोई मंत्र दिया ही नहीं, उपदेश फॉर्मली कभी दिया ही नहीं, वो एक फॉर्मल गुरु की तरह कभी बिहेव ही नहीं किया उन्होंने, बट उन्होंने अपने को एक उपदेश देके गए, श्रद्धा और सबूरी. यू नो, दीज आर द 2 मंत्रस दैट ही स्पोक ऑफ. इसके बारे में और इसके पीछे की जो कहानी है, और श्रद्धा का क्या मतलब है, सबूरी का क्या मतलब है. जनरली हमको ऐसा लगता है श्रद्धा मतलब फेथ एंड सबूरी मतलब पेशेंस. I would like to dwell on that and how it is beyond those words. इंग्लिश में जब हम कोई भी चीज ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो वो थोड़ा लॉस हो जाता है उसका मीनिंग. तो उसके बारे में थोड़ा देर मुझे आई वुड लाइक टू स्पेंड सम टाइम इन द नेक्स्ट सेशन. व्हाई आई एम गिविंग यू, वो क्यों मैं अभी अगला सेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ताकि वो थोड़ा सस्पेंस बिल्डअप रहे. इट्स लाइक कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा टाइप्स. सो उनको सस्पेंस बना रहे, ताकि यू ऑल एनीवे जॉइन नेक्स्ट वीक ऑल्सो. हम लोग कुछ लीलाएं देखे हैं अब तक, काफी लीलाएं देखे 5 सेशंस में. लास्ट वीक में हम लोग जब एंड कर रहे थे, तभी हम कैसे उन्होंने अलग अलग रोग, कैसे ही टुक केयर ऑफ हेल्थ इश्यूज, डिसीजेस, उसके बारे में कुछ देख रहे थे. सो आई विल कंटिन्यू कपल ऑफ देम ऑन द सेम लाइंस टू जस्ट कैच अप वेयर वी लेफ्ट, कैच द थ्रेड वेयर वी लेफ्ट. एक बार क्या होता है, बुद्धि, सबको पता है बापू साहेब बुद्धि इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटीज. आज अगर हमें समाधि मंदिर मिलता है जहाँ पे जाके बाबा का समाधि हुआ है और हमें दर्शन लेने का भाग्य मिलता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस भक्त, दिस डिवोटी. उन्होंने अपना वाड़ा बाबा को दे दिया समाधि के मंदिर बांधने के लिए, तो उनके वजह से मिलता है हमें. ये भक्त लोग, ये जब डिवोटीज है ना, ये उतने ही बड़े हैं जितने हमें संत, हमारे संत हैं, राइट. बिकॉज ऑफ देम वी फर्स्ट कम टू नो अबाउट द सेंट्स. बिकॉज ऑफ देम हमें बहुत कुछ लीलाएं भी पता चलता है, और बिकॉज ऑफ देम वी ऑल्सो गेट टू हैव देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो ये एक बार बुद्धि को सीवियर वॉमिटिंग एंड डिसेंट्री, मतलब ऊपर से भी नीचे से भी, ही इज लूजिंग लिक्विड, ओके, एंड ही इज लूजिंग लिक्विड इन लीटर्स, ओके. तो बहुत वीक हो जाते हैं. नेचुरल, राइट. फर्स्ट हमको अगर कुछ भी होता है, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑल ऑफ अस डू इज टेक मेडिसिन. सो ये वो भी वैद्य के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, मेडिसिन लेने की कोशिश करते हैं, कुछ होता नहीं है. ही इज स्टिल लूजिंग एंड इज बिकम वेरी वीक, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, बैठ भी नहीं पा रहे हैं अपने घर पे वाड़ा में. तो बाबा को जाके वहां पे वो उनको कोई आके मैसेज देता है कि बुद्धि इज नॉट वेल और वो बैठ भी नहीं पा रहा है. बाबा बोलते हैं कोई बात नहीं, उसको लेके आओ. तो किसी तरह 2 जन पकड़ के उसको बाबा के सामने आके बिठाते हैं. बिठाने के बाद बाबा के एकदम करीब बैठे हैं. बाबा उसके तरफ बहुत गुस्से से देखते हैं, एंड ही जस्ट पॉइंट्स द फिंगर लाइक दिस एंड ही सेज रुक जाओ. ओके, दिस इज व्हाट ही सेज, रुक जाओ. बुद्धि ऑफ कोर्स इज एन ओल्ड डिवोटी, ही नोज वो किसको बोल रहे हैं, रुक जाओ ये किसको बोल रहे हैं, उनको नहीं बोल रहे हैं. द वॉमिटिंग एंड द डिसेंट्री उनको बोल रहे हैं. तत्क्षण इमीडिएटली द वॉमिटिंग एंड डिसेंट्री स्टॉप. बाबा ने अपने हाथों से उनको पानी पिलाया और बोले तुम ठीक हो जाओगे. गोज रेस्ट फॉर अ व्हाइल एंड कपल ऑफ डेज ही बिकम्स ओके. व्हाई डू आई कवर दिस स्मॉल स्टोरीज? अलग अलग लीलाएं जो उन्होंने अलग अलग तरीके से किया है, किसी को शब्दों से किया है, राइट. अभी द नेक्स्ट वन दैट आई विल नरेट इज वेयर ही इज एक्चुअली गिवन सम मेडिसिन. बुद्धि को ही एक बार कॉलेरा हो जाता है, ओके. ही गेट्स कॉलेरा एंड इट इज नॉट स्टॉपिंग एट ऑल. कॉलेरा में भी दस्त बहुत होता है, एंड इट ऑल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ थर्स्ट. पानी पीने का बहुत थर्स्ट भी आता है. तो बाबा के पास आते हैं, बाबा के पास आके बोलते हैं मेरा ये दस्त भी नहीं रुक रहा है और थर्स्ट भी नहीं रुक रहा है, कॉलेरा से ग्रस्त हूं मैं, आप मदद कीजिए बाबा. बाबा बोलते हैं मैं तुमको एक दवा देता हूं. बाबा दवा देते हैं. बाबा बोलते हैं थोड़ा बादाम लो, थोड़ा अखरोट लो, पिस्ता लो, और गाढ़े दूध में उसको उबाल के
पीस के उसको मिला के उबाल के उसको पी लो. Now this is exactly a medicine that should not be given to somebody who's got a stomach problem. Okay, it is a medicine that one will not even think of giving when somebody has got a stomach problem. Directly it will affect. Okay, विपरीत हो जाएगा. But Baba है, right? He will test. Baba as a guru ना will always test the resolve of his devotees. वो कितना हम पे विश्वास रखते हैं, वो हमेशा will test. बुटी was an old hand. बुटी एक ऐसे डिवोटी है जो आंख बंद करके, चंदोरकर, बुटी, श्यामा एंड ऑल आंख बंद करके बाबा पे विश्वास करने वाले हैं. तो बुटी को जो बोलता है तो बुटी एक्चुअली गोज एंड डज दैट मेडिसिन एंड ही गेट्स क्योर्ड आल्सो. No, if you were to just listen to this story, one would think कि दस्त के लिए this is a good medicine. पहले वाले इसमें हमने देखा था, where काका साहब दीक्षित got शेंगदाना खिलाया उनको. These are all opposite medicines. Because medicines में अनुग्रह नहीं है, Baba is the anugrah, Baba is the medicine, right? The medicine that he's suggesting is only a test to the devotees. इसी तरह एक किसी को उदी देके उन्होंने किया, हरडा करके, दत्तोपंत करके, एक डिवोटी थे, हरडा करके गांव से. 14 साल से उनको पेट में he had severe stomach ache, 14 years he suffered it. कोई बोलते हैं कि बाबा के पास जाइए, आप वहां पे ठीक हो जाओगे, तो आते हैं बाबा के पास, दर्शन के लिए आते हैं. बाबा सिर्फ अपना हाथ पेट पर रखते हैं और हाथ he gives him उदी. वो उदी देने के बाद he becomes okay. Now this is something that all of us can follow. Okay, why I covered this story, which is a very small story. बाबा का अगर उदी मिलता है तो उसे प्रिजर्व करके रखिए, स्पेरिंगली यूज कीजिए. It is something that can cure diseases, and this is something that I am saying from personal experiences. हमारे घर पे अगर किसी को, if somebody falls ill, medicines तो चालू करते ही हैं, वो तो करना ही चाहिए, right? बाबा का अनुग्रह is surely to be taken along with medicines. So medicines तो करते ही हैं, but बाबा का उदी पानी में मिला के थोड़ा पिला दो, या नहीं तो माथे पे लगा दीजिए, पक्का बेनिफिट मिलता है. बाबा का उदी आज भी उतने ही प्रभाव से it affects as it was when Baba was there, and it is an amazing medicine that all of us have. तो अगर कोई जाता हो शिरडी तो उदी मंगा लीजिए, या उदी के पास है तो उसे sparingly यूज करके try and have it for a longer period of time. It is a sure shot medicine for lot of things, not only physical ailments, also mental stress. I will try and come to a few stories which is around Das Ganu. Okay, again a very great devotee. बाबा का जो ख्याति थी, मतलब उनका जो फेम था, वो धीरे धीरे बढ़ा. एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव टोल्ड अर्लियर आल्सो. पहले सिर्फ नगर के एरिया में, शिरडी के अराउंड पीपल स्टार्टेड नोइंग, देन पूना डिस्ट्रिक्ट में गया, सम डिवोटीज स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम देयर. दास गणु के कीर्तन, चंदोरकर के शब्द, okay, because Chandorkar was in a powerful position, he was in a senior position in the government, he used to talk to a lot of people about Baba. And हेमत पंत के लिखान, मतलब उनका जो सच्चरित्र उन्होंने लिखा, ये तीनों के वजह से हमें आज बाबा मिलते हैं, right? अगर बाबा इतने पॉपुलर है, this is something that I covered in the first session itself. Undoubtedly the most famous saint of today's world is Baba. ऐसा एक भी मुझे हिंदू दिखा दीजिए जो बाबा के बारे में जानता ना हो, who has not heard of Sai Baba. I heard a lot of people not knowing Mauli, not knowing Tukaram Maharaj, not knowing Ramakrishna Paramahamsa, not knowing Mahaparivar, Nyananda Swami तो बहुत कम लोग जानते हैं. Not knowing Sai Baba, ऐसे I can challenge. There is not a single person who doesn't know about Sai Baba. Why he is so famous? Of course it is his Leela, but we got to know of his Leela because of these three people. इसलिए इन तीनों को हमको नमन करना चाहिए, because these three people have contributed immensely to that. तो एक बार दास गणु, वो he was a constable, okay? वो बाबा उनको डोर पकड़ के खींच लेते हैं अपने पास, because he had a job to do, right? He had a job of doing kirtan and spreading Baba's gospel. तो वो उनको वो resign करवा के he comes and becomes part of the Baba's this thing permanently. वो हरि कथा कीर्तन करते थे. हरि कथा कीर्तन में क्या होता था ना, एक there is a पोशाक that you have to wear, okay? वो you have to wear that proper that सदरा, नीचे धोतर होता था, ऊपर गार्लैंड होता था, तुलसी का हार होता था, okay? And then there is to be that tilak and all those things, and then you have to have chipla. Chipla is that I don't know what you call in other languages, okay? You kind of bang it against each other.
and then you have this ektara or veena as it's called. It's just an ektara, okay, or a tambura type. So ये पूरा एक, this is a whole package, you know, that is how kirtan is done. And they stand and then they start off, kirtan करना चाहिए. तो एक बार दास गणु ना अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, अच्छी तरह से ड्रेस वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसा करके बाबा के पास आके नमस्कार करते हैं, बोलते हैं आज मेरा कीर्तन है, आप अनुग्रह दे, तो मैं शिरडी में ही है, तो आई विल गो एंड परफॉर्म. तो बाबा बोलते हैं कहाँ ऐसे जमाई बन के सज के जा रहे हो? तो दासगणु बोलते हैं बाबा कीर्तन करने जा रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई टोल्ड, कीर्तन करने जा रहा हूँ, तो इस तरह से ही जाते हैं, दैट इज दी प्रथा. तो बोलते ये प्रथा नहीं है, कीर्तन नारदीय, मतलब नारद मुनि ने जिस तरह से किया उस तरह से करो. नारद मुनि इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कीर्तन. तो बोलते उसने कभी ऐसे ये सब मेकअप और ये सब डाला नहीं था. तो बोले ऊपर के कपड़े उतार दो, ओके, सिर्फ तुलसी का हार होना चाहिए, ओके, एंड एक हाथ में वीणा, एक हाथ में चिपड़ा, एंड दैट इज ऑल, एंड ऑल दैट यू आर सेइंग इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. इस तरह से आडंबर के बगैर यू हैव टू डू इज व्हाट बाबा गाइड्स हिम. तो इस तरह से नारदीय पद्धति में नारद मुनि ने जिस तरह से कीर्तन का जो एस्टैब्लिश किया, उस तरह से बाबा ट्रेन्स दासगणु, एंड दैट इज हाउ दासगणु केप्ट ऑन डूइंग. दासगणु जब भी करते थे तो एक जगह पे फोटो उनके रखते थे, लाइक वी हैव यू नो बाबा हनुमान, ऐसे कीर्तन जब भी करते हैं तो भगवान का फोटो रखते हैं, वो बाबा का फोटो रखते थे. एंड लाइक देन पीपल यूज्ड टू कम टू द कीर्तन, दे यूज्ड टू आस्क कि ये कौन है, कौन सा संत का ये फोटो है. देन यूज्ड टू टॉक अबाउट बाबा, बाबा के कीर्तन करते थे, बाबा के कथाएं बताते थे. इस तरह से लोगों को बाबा के बारे में पता चला. दैट इज हाउ इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग. ऐसे एक कीर्तन में देयर वाज अ पर्सन हु केम कॉल्ड चोलकर, ओके, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड अ वेरी इमोशनल वन. वन ऑफ, आई टोल्ड, ये पहले भी मैंने बताया था, आरती में, मतलब बाबा के जो आरती होते हैं 4, उसमें 2-3 गाने दासगणु के हैं, भजन. आपको दोज हु आर रेगुलर विद साईं बाबा एंड शिरडी वुड नो. रहम नजर करो अब मोरे साई, तुम भी नहीं मुझे माँ बाप भाई, ऐसे करके ब्यूटीफुल, आई मीन वो गाएंगे ना, एंड आंख भर नहीं आएंगे, ऐसे हो ही नहीं सकता, इतना ब्यूटीफुल दैट लिरिक्स इज. द अदर वन इज साई रहम नजर करना, बच्चों पे पालन करना. तो ये बोथ आर अगेन वेरी इमोशनल एंड ब्यूटीफुल भजन्स which दासगणु ने किया था, ओके, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द आरती. थोड़ा I'll cover that quickly. तो चोलकर का कहानी हम सुन रहे थे. तो चोलकर करके there was one person who was working, okay, वो टेम्पररी एम्प्लॉय थे सिविल कोर्ट थाने में, ओके, थाने में सिविल कोर्ट है, वहां पे he was a temporary employee. वन ऑफ द कीर्तन्स, बाबा जब दासगणु आए थे थाने में, वहां पे ही अटेंड्स एंड ही सीज बाबा's फोटो. बाबा का फोटो देखने के बाद, बाबा के कहानियां सुनने के बाद, कीर्तन सुनने के बाद, ही फील्स वेरी अट्रैक्टेड. वो एक अपने आप एक भक्ति भाव आ जाता है उनमें. एंड ही थिंक्स ही इज अ वेरी पुअर पर्सन, ओके, अ पुअर पर्सन विद अ लार्ज फैमिली, बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बहन है, नो, इट्स अ लार्ज फैमिली दैट इज लिविंग इन अ स्मॉल प्लेस एंड very difficult to make the ends meet. तो इस तरह से वो अपना गुजारा कर रहे हैं. बाबा का ये फोटो देखने के बाद, कीर्तन देखने के बाद उनके मन में आता है, एंड ही प्रेज, मनी मन में वो प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांग लेते हैं मनी मन में, किसी को नहीं बताते हैं. बोलते हैं अगर मैं इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम देके मुझे अगर परमानेंट जॉब मिल जाए और मेरा पगार में बढ़ोतरी हो जाए, तो बाबा मैं आपके दर्शन के लिए आऊंगा शिरडी, ओके. दिस व्हाट ही प्रेज, अपने आप में मन में वो प्रार्थना कर लेते हैं. And it so happens that उसके बाद whenever the date was announced, he gives the interdepartmental exam, वो पास भी हो जाते हैं, उनको परमानेंट जॉब भी मिल जाता है, पगार में बढ़ोतरी भी हो जाती है. ये सब होने के बाद उनको मन में लगता है अभी शिरडी जाना चाहिए, दर्शन लेने के लिए जाना चाहिए, मैंने मन्नत मांगा था और बाबा के अनुग्रह से ये जो भी हुआ है, मुझे जाना चाहिए. सच्चे मन से वो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन घर का हालत ऐसा है कि वो हिल नहीं पा रहे हैं. बिकॉज इनकम बढ़ा ठीक है, बट द एक्सपेंसेस हैव आल्सो ग्रोन एंड द एक्सपेंसेस कंटिन्यू टू बी मोर देन इनकम, ओके. तो वो रियली डिफिकल्ट पोजीशन में है. एंड ही इज आल्सो वन ऑफ दोस गाइज हु इज वेरी हेल्पफुल. अगर कोई आके मांग ले, थोड़ा जमा करके रखा हुआ तो भी दे देंगे. इस किस्म के एक दंपति थी, विच इज अ वेरी गुड कपल. मन में था शिरडी जाना, बट जेन्युइन कंडीशंस की वजह से जा नहीं पा रहे हैं. दैट इज हाउ संसार में अटके हुए हैं.
हम लोग बोल देते हैं हमको शिरडी जाना है, बट उस जमाने में पीपल स्ट्रगल्ड इवन फ्रॉम थाने टू शिरडी जाने के लिए भी ट्रेन करके जाना पड़ेगा कोपरगांव तक, नासिक जाके, नासिक से कोपरगांव जाके, वहां से फिर टोंगा करके जाना, उसके लिए होने वाला खर्चा, ऑफिस में छुट्टी मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। सी ऑल ऑफ दिस इज दैट हैपेंस टू अस इवन टुडे। लेकिन मन में बहुत दुख है कि बाबा के वजह से मिला मगर मैं जा नहीं पा रहा हूं, क्या करेंगे? तो मियाँ बीवी डिस्कस करते हैं कि हम लोग कैसे भी करके ना अपना एक्सपेंसेस घटा लेंगे, धीरे 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 विल सेव एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दोनों जाके आएंगे। वो दे कट देयर ओन एक्सपेंसेस, एक टाइम का खाना कम कर लेते हैं, दे स्टार्ट सेविंग, थोड़ा थोड़ा सेव करना चालू कर देते हैं, फिर भी जम नहीं रहा है पैसा। चोलकर ना अपने मन में वो डिसाइड करता है कि मैं आज से शक्कर छोड़ दूंगा, ओके, आई विल नॉट ईट ड्रिंक, आई विल नॉट हैव शुगर। मैं शुगर तभी खाऊंगा जब मैं बाबा का दर्शन लूंगा। तो डिसाइड करते हैं कि मैं आई विल ड्रिंक चाय विदाउट शुगर, आई विल नॉट ईट स्वीट्स। तो वो भी पैसा मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा, ओके। इस तरह से वो सच्चे मन से दे आर ट्राइंग टू कलेक्ट मनी। धीरे 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 थोड़ा मनी कलेक्ट हो जाता है, ऐसे कुछ साल निकल जाते हैं एंड कुछ पैसा कलेक्ट हो जाता है, बट फिर भी इट इज नॉट एनफ फॉर बोथ टू गो, हस्बैंड एंड वाइफ। तो हिज वाइफ सेज इट इज ओके, एटलीस्ट वन ऑफ अस, तुमने मन्नत मांगी है, एटलीस्ट आप तो जाके आप जाके दर्शन ले लीजिए। बहुत साल हो गए, उनके अनुग्रह से हमारा धीरे धीरे कंडीशन बेहतर होता जा रहा है, उनके अनुग्रह से तुम्हें जाना चाहिए। तो ही सेज ओके आई विल गो एंड ही देन गोज, टेक्स अप द जर्नी, गोज टू शिरडी। शिरडी में जाने के बाद वो वहां पे जाके बापू साहेब जोग करके एक अदर डिवोटी है, उनके साथ वहां पे रुकते हैं। बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत दिन की तमन्ना जब पूरी होती है ना, तो वो अलग लेवल पे होती है, राइट। हम लोग जब हमारे मन में वी हैव एन इंटेंस ड्रीम, ओके, कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, लेकिन वी आर नॉट एबल टू बाय। धीरे धीरे पैसा जमा करके व्हेन वी बाय दैट हैप्पीनेस आफ्टर 1 year 2 years, बिकॉज यू पुट दैट पेनेंस इनसाइड दैट बिकम्स अ पेनेंस, राइट। वो जो 2-3 साल जो भी गुजरे, वो चोलकर के लिए एक पेनेंस की तरह था। बाबा के यहाँ जाना है, जाना है, जाना है, उसके लिए पैसे जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है, राइट। तो वो बाबू साहब जोग के यहाँ पे आते हैं। बाबू साहब जोग उस दिन बोलते हैं चलो मैं तुम्हें बाबा के यहाँ पे लेके जाता हूँ सुबह। उस दिन सुबह ना बाबा मस्जिद के बाहर खड़े हैं, पिलर को पकड़ के बाहर खड़े हैं, एंड ही इज लुकिंग आउट एज इफ इज वेटिंग फॉर समबडी। तो बाजू में साफ करने वाले हैं, एंड यू नो अब्दुल एंड ऑल दोस पीपल, वो बोल रहे हैं बाबा क्या हुआ है, आप यहाँ पे क्यों दरवाजे पे खड़े हैं, तो किसी की राह देख रहे हैं क्या? तो बाबा बोलते हैं हाँ आज आने वाला है वो, इज व्हाट ही सेज, ओके। दिस इज व्हाट हैपेंस, यू नो, व्हेन हम लोग मन्नत मांग लेते हैं, सामने भगवान भी हमारा इंतजार करता होता है, राइट, यू नो, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो चोलकर ना सामने मस्जिद के आंगन में आते हैं। आंगन में आते ही बाबा स्माइल्स एंड ही लाफ्स एंड ही सेज, ही टर्न्स अराउंड, somebody standing there, बोलते हैं अरे सुनो, जाके चाय लेके आओ और सुनो बहुत सारा शक्कर डाल के लेके आना, is what he says। चोलकर सुनता है एंड ही जस्ट स्टार्ट्स he just rushes to बाबा, ओके, आके नमस्कार करते हैं। मन में 2-4 साल पहले मांगा वो मन्नत, राइट। इसे हम मन्नत बैठ के मांग लेते हैं, भगवान तक पहुंचा नहीं पहुंचा इसका प्रमाण नहीं मिलता है हमको, राइट। वी नेवर कम टू नो वेदर इट हैज रीच्ड गॉड और नो, बट व्हेन वी कम टू नो दैट इट हैज रीच्ड द गॉड, उसका इंपैक्ट बहुत अलग रहता है, राइट। ही कम्स एंड डैशेस हिमसेल्फ, बाबा मैंने मन्नत मांगा था, ये आपको पता था। बाबा हैप्पीली जस्ट स्माइल्स, ही रब्स हिज हैंड ऑन हिज बैक एंड ही सेइंग चोलकर उठो, तुम्हारी मन्नत मेरी तक पहुंच गई थी, राइट। सुनो आज के बाद भरपूर शक्कर खाना, इज व्हाट ही सेज। देयर इज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग दैट बाबा गिव, एंड ही आल्सो सेड आज के बाद सब अच्छा हो जाएगा। आगे चोलकर का क्या हुआ लिखा नहीं है चरित्र में, लेकिन हमें कोई संदेह करने की जरूरत भी नहीं है, राइट। बाबा इज देयर टू टेक केयर, आई एम श्योर उनका अच्छा ही हुआ रहेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो ऐसे चोलकर
का जो मन में था एक मन्नत, वो मन्नत किस तरह से उन्होंने सामने से he reacted to it बाह्य तौर पे. That I'll cover that beautiful story. This is one of those stories that I really love. Okay, this is one of the stories that has been very special to me. हम बहुत कुछ मांग लेते हैं बाबा के पास या अपने अपने गुरु के पास, वो किस तरह से उसे स्वीकार करके हम पर अनुग्रह करते हैं, ये एक बाह्य रूप पे बाबा ने दिखाया कि this is how saints react. You know, that is what comes out of this story. So it's a very special one. Thanks. ऐसे ही, okay, there is one more story. Who got benefited by Das Ganu and his Kirtan. Ratanji करके नांदेड़ करके, there is a small town in Maharashtra. No more a small town, it's a big town. Okay, he was a mill contractor, trader, businessman. Okay, रतनजी वाडिया करके बहुत बड़े businessman थे, काफी पैसा था. Okay, a lot of fields, lands, cattle, horses, servants, employees. So very happy, good family, wealthy family. बाहर से हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि यार इसके पास इतना पैसा है, इसको क्या कमी होगी, राइट? बट अंदर से ना बहुत दुखी थे. दुखी क्यों थे? क्योंकि निस्संतान थे. Okay, he didn't have any progeny, he didn't have children. See, this is what happens. हम लोग को लगता है अमीर इंसान बहुत हैप्पी होगा. Actually, if you go and see Ambani, he might have his own problems, right? He might be 9th richest person, Adani might be the 3rd richest person. हमको लगता होगा अरे इसको क्या दुख होगा, इतना तो पैसा है, बोले तो कुछ भी, can buy anything. But happiness cannot be bought. And दर्द और दुख कोई भी कॉर्नर से आ सकता है, right? I mean, we feel that, for example, Ambani might have one of the largest worry, इतना बड़ा empire बना के रखा है, मेरे बच्चे संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे पता नहीं, right? That probably might be his largest worry. He's already crossed 65. He doesn't know whether his children will be able to take care of it or not. Maybe, I don't know. I'm just conjecturing. But this is a fact of life. सुखी ये दुखलोक में कोई नहीं है, right? The only constant feeling that all of us have is of sorrow, right? From one sorrow to the other sorrow is all that we really move. So where is this happiness? Happiness is a very eluding factor. ये दो दुखों के बीच में का जो गैप है ना, वो हम सुख की तरफ मान लेते हैं. Okay, the largest contributor to our happiness, and you will find this odd, the largest contributor to happiness is actually somebody else's sorrow. Okay, and it is not in bad sense. ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि we get some vicarious happiness out of somebody. अरे वो देखो दुखी है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं. सच्चे मन से भी क्या होता है, हम लोग को फीलिंग कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल, कोविड में we've heard so many people, right? We heard people losing parents, child, 2 साल 3 साल के बच्चा छोड़ के माँ पिताजी दोनों गुजर जाते हैं. जब ये ऐसे न्यूज सुनते हैं तो हमको एहसास होता है अरे भगवान ने हम पे कृपा किया है, एटलीस्ट हम वी आर नॉट इन दैट पोजिशन, राइट? दैट बिकम्स अ मोड ऑफ आवर हैप्पीनेस. उनके दुख पे हमारा हैप्पीनेस है ऐसा नहीं है, मगर हमको एहसास हो जाता है कि यार हम इतना भी दुखी नहीं है, राइट? किसी और का दुख देखने के बाद हमें पता चलता है, एहसास होता है कि यार भगवान ने हमें तो ठीक ठाक ही रखा है, right? That feeling of gratitude suddenly comes into us. So the largest contributor to our happiness technically is always somebody else's sorrow. हमको अपने आप से कभी खुश होते ही नहीं हैं. बुद्धा कह के गए, right? आशा निर्मूला दुख निर्मूला. जब तक डिजायर्स हैं तब तक दुख रहेंगे. हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग ना, हमारे पास जब घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो हम प्लान करते हैं हमारे पास गाड़ी होना चाहिए, घर होना चाहिए, एंड देन उसकी तरफ हम चल पड़ते हैं. भगवान खुश होकर दे भी देता है, बट बाय द टाइम हम वहां तक पहुंचते हैं ना, हमें लगता है हमें बड़ा गाड़ी और बड़ा घर चाहिए, राइट? वी आर नॉट लिविंग इन दैट मोमेंट. भगवान ने दे दिया, भगवान सोच रहे अरे इसने पहले तो ये मांगा, ये दे दिया, तो ये फिर भी और मांग रहा है, ये अभी भी दुखी है, चलो इसको बड़ा गाड़ी बड़ा घर दे देंगे, तो कुछ और मांगने लगते हैं हम लोग. सो वी डोंट नेवर लिव इन दैट मोमेंट. पहले मांगा हुआ ड्रीम हम आज रह रहे हैं, वी आर लिविंग दैट ड्रीम इज समथिंग वी फॉरगेट. वी आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द नेक्स्ट. हम लोग गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं, राइट? वी आवरसेल्व्स चेंज द गोल पोस्ट और बोलते हैं बाबा अभी इस पे गोल मारो, फिर वो बदल के दूसरी जगह पे रखते हैं, बोलते हैं बाबा अभी इस पे गोल मारो, राइट? दैट इज व्हाट वी कीप डूइंग. सो रतन जी आल्सो इज वेरी सैड. पैसा है, काफी है, पीपल है, दीज रिस्पेक्टेड, वो दान धर्म करते हैं, सब कुछ है, लेकिन निस्संतान है, बच्चा नहीं है. ओके, अंदर से टूट गए. इतना सारा इतना सब ऐश्वर्य है, इतना सब है, लोगों का रिस्पेक्ट है, क्या करेंगे? लेके तो कहीं जाने नहीं वाला है.
तो दुखी है, दासगणों का कीर्तन सुनते हैं, दासगणों उनको पहचान में भी थे अच्छी तरह से। तो एक बार दासगणों के पास आके अपना दिल का हाल सुना के रो देते हैं, बोलते हैं इस तरह से चल रहा है मेरी जिंदगी, मेरा भी उम्र होते जा रहा है, मैं क्या करूं। तो दासगणों बोलते हैं हमारे जब भी कुछ होता है तो हम बाबा के पास जाते हैं, अगर संतान प्राप्ति तुम्हारे भाग्य में लिखा है तो बाबा जरूर दे देंगे, अगर नहीं लिखा है तो मन का शांति तो जरूर मिल जाएगा, तुम्हें दुख का एहसास तो नहीं होगा। ओके, आइदर वेज यू विल बेनिफिट, मेरे साथ चलो मैं लेके जाता हूं। तो आ जाते हैं शिरडी। तो आने के बाद वो आते ही लव्स दैट प्लेस। ओके, वो आते ही बाबा का सानिध्य देख के बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, आने के बाद नमस्कार करते हैं, बहुत सारे फल फूल सब लेके आए हैं। संत को देखने जाते हैं तो कैसा जाना चाहिए शायद उनको पता ही था या दासगणों ने बताया भी रहेगा। तो फल फूल वगैरह लेके आए हैं, काफी अर्पण करते हैं, बाबा के पास बैठते हैं और बोलते हैं बाबा आप एक कल्प वृक्ष की तरह बैठे हो यहाँ पे, जो चाहे सबको दे देते हो, मुझ जैसे पापी को भी आपको देना है कुछ, तो मैं बहुत आस लेके आया हूं, निराश मत कीजिए बाबा। बाबा स्लोली पैट्स हिम, व्हाट इज इट दैट यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें। तो बोलते हैं मैं निसंतान हूं बहुत सालों से, संतान प्राप्ति की मुझे आप अनुग्रह दीजिए। उनका वो प्रेयर सच्ची था, इट वाज अ ट्रू प्रेयर, ओके, दैट ही पुट फोर्थ। बाबा ऑल्सो स्माइल्स। बाबा बोलते हैं मुझे ना एक काम करो, मुझे 5 रुपया दे दो, अभी के अभी दे दो। ओके, तो रतन जी immediately puts his hand into his pocket. 5 rupees was nothing for him. He was a rich kid. So immediately puts into this hand into his pocket. तो even as he puts his hand into the pocket, बाबा रोक देते हैं। बाबा बोलते हैं तुमने ना मुझे 3 रुपया 14 आना, उस जमाने में आना था, 3 रुपया 14 आना मुझे दे चुके हो, तुम्हें मुझे सिर्फ बैलेंस देना है। ओके, वॉट एवर, 1 रुपया 2 आना शायद बनता है, उतना ही मुझे देना है, बाकी मुझे देना नहीं है। तो रतन जी इज थिंकिंग कि ये कब हुआ, मैं तो पहली बार मिलने आया हूँ, दासगणों ने बोला मिल लो बाबा से, इसलिए आया हूँ, मैं इनसे मिलके इनको 3 रुपया 14 आना अगर मैंने दिया होता तो मुझे पता ही होगा, इनको कभी मैंने दिया पता नहीं है। बट ही इज थिंकिंग इन हिज माइंड एंड ही नोज दैट यू कांट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस टू बाबा। सो वो बाकी के 1 रुपया 2 आना, आई डोंट नो वेदर आई गॉट द मैथमेटिक्स राइट, but I think 16 आना becomes 1 rupee is what I remember from what my father had told, right? So 2 आना 1 रुपया 2 आना is what would be the balance ideally, या whatever that balance वो दे देते हैं, नमस्कार करते हैं, बाबा blesses him, बोलते हैं संतान प्राप्ति जरूर होगा, is what he blesses, and कुछ दिन रहते हैं, then he comes back to नांदेड़ आने के बाद वो दासगणों से मिलते हैं और वो दासगणों पूछते हैं कैसा था बाबा का दर्शन, तो बोलते बहुत अच्छा था, मगर एक विचित्र बात हुआ, मुझे 5 रुपया देने बोले, मैंने देने वाला था तो तब तक उन्होंने बोला कि मैंने 3 रुपया 14 आना दे चुका हूं, सिर्फ बाकी का ही मुझे देना है, तो ये कब हुआ क्या हुआ मुझे पता नहीं है, ये क्या रहस्य है। तो दासगणों भी सोच रहे हैं कि बाबा, ही नोज व्हाट बाबा इज, राइट, तो ही सेड आई डोंट नो, देयर मस्ट बी सम रीजन व्हाई ही मस्ट हैव डन इट। ऐसे करके दासगणों भी सोच रहे हैं, तभी उनको याद आता है, वो बोलते हैं रतन जी आपने अपने घर पे एक संत को बुलाया था, मौली साहेब करके, नांदेड़ में बहुत बड़े संत थे, उनको अपने घर पे बुला के उनका उपचार करवाया था, उनको यू हैड गॉट हिम होम एंड देन लोगों को भी बुलाया था, उनका यू हैड रिस्पेक्टेड हिम। तो रतन जी बोलते हैं हाँ कुछ महीने पहले ही हुआ था, मौली साहब आए थे, बराबर है, व्हाट अबाउट दैट। तो दासगणों से इसकी कॉल योर अकाउंटेंट एंड फाइंड आउट फ्रॉम योर अकाउंट्स कि तुमने मौली साहब को जो रिसेप्शन दिया था, जो वेलकम किया था, उस पर कितना खर्चा किया था। ओके, तो वो अकाउंटेंट को बुला लेता है, मुनीम जी आते हैं, मुनीम जी आके वो लेजर विजर देख के बोलता है कि 3 रुपया 14 आना खर्चा हुआ। एग्जैक्टली, बाबा एक्सेप्टेड दैट 3 rupees 14 आना दैट वाज स्पेंट ऑन मौली साहब। This only shows गुरु तत्व एक है, हम सब अलग अलग रूप में इस भूतल में आए हैं, लेकिन we are all the same, right? That is what Baba indirectly showed. That is one. Secondly, he showed that you pray any guru, you take care of any saint, it will all finally reach me, right? आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति. That is what Krishna said. Like rain falls and goes into different water bodies, but finally all of it goes into Sagaram Pratigachati, goes to the ocean. Same, Krishna says you pray to any god, Sarvadeva Namaskara Keshavam Pratigachati, it will come to me. That is how Baba proved. You do puja to any saint, I am always looking at you. You don't have to know that you know me.
ऐसे जरूरत ही नहीं, उनको तो बाबा कौन था पता भी नहीं था, उन्होंने तो मौलवी साहब को ही उन्होंने वो दे दिया था. He prayed him, it still reached Baba. Of course, Ratanji got a very nice son and he was blessed and his family was taken care of. A similar story I thought in parallel I will cover. महापरिवार, this is something I covered. महापरिवार कांची महास्वामीगढ़ का जब मैंने कवर किया था तभी ये डिटेल में कवर किया था, संक्षिप्त में कवर करता हूँ. There is a चार्ट अकाउंटेंट आता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, अनुग्रह जब होता है, being from the same profession, I find it more interesting. तो एक चार्ट अकाउंटेंट थे साउथ में, कारेकाल करके देयर इज अ टाउन. ओके, कारेकाल वो टाउन में देयर वाज अ चार्ट अकाउंटेंट हु वाज लिविंग. उनके ड्रीम में महापेरिवा अपीयर्स एंड ही सेज अ वेरी स्पेसिफिक अमाउंट एंड ही सेज 1387. ओके, 1387 ये एक शास्त्री को जाके दे देना, उनको वेद पारायण की जरूरत के लिए जरूरत है, उनको खर्चा है, उनको जाके दे देना. ऐसे सपने में आके महापेरिवा बोल के गए टू दिस सीए. वो उठता है, उठने के बाद वो सोच रहा है कि दे तो दूंगा, आई विल गिव इट ऑफ 1387, बट व्हाट इज दिस ऑड अमाउंट. ओह 1387, ये वेयर डिड दिस फिगर कम फ्रॉम. 1000 बोल देते, 1300 भी बोल देते, 1500 भी बोल देते तो ठीक है, वेयर इज दिस 1387 कम फ्रॉम. तो सोच रहे हैं जाके वो जो जिनको देना है वो एंश्योर्स दैट इट आल्सो गोज, द मनी रीचेस एट द राइट टाइम. इट्स अ बिग लीला, आई विल नॉट कवर दैट. वो वेद पारायण वगैरह हो भी जाता है, मगर इनके मन में लगा हुआ है 1387 कहां से आया. तभी उनको इट सडनली रियलाइजेस, वो जब सीए स्टूडेंट थे, सीए फाइनल देने के लिए जब स्टूडेंट थे, उनके पिताजी ने कांची में छुट्टियों के लिए भेजा था, तो वहां पे रहे थे 2-3 महीना, वहां पे सेवा करते थे. तो महापेरिवा ने उनको पूछा था कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो ही सेड मैं सीए फाइनल देने वाला हूं. महापेरिवा ने आशीर्वाद दिया था, बोले सीए फाइनल हो जाओगे, देन देयर इज नो क्वेश्चन, राइट. महापेरिवा हैज ऑलरेडी ब्लेस्ड हिम. वो बोल रहे होने के बाद मुझे क्या दोगे. तो द चाइल्ड ही सेज, पेरिवा आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगा. तो बोले पिताजी से मांग के मत देना, अपने पहले कमाई से मुझे 1000 रुपया देना. दैट इज व्हाट महापेरिवा हैड आस्क्ड फॉर. वो सीए फाइनल भी हो जाता है, उसको नौकरी भी लग जाता है, फिर वो प्रैक्टिस भी चालू कर देता है. ये 1000 रुपया देना भूल जाता है वो. ओके, ही फॉरगेट्स दिस. Mahaperiva on his own, okay, he ensured after a few years to go in his dream and collect. He's a CA, right? उसने quickly पेपर लेके कैलकुलेट किया. उस जमाने के सिंपल इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1000 for those many years turns out to be 1387. करुणा देखो, संत का ऋण नहीं रखेंगे. This is not about asking money. This is about, since he had asked for that money and he had forgotten, वो सूद समेत उन्होंने वसूल किया, so that he doesn't have to take one more janma to repay that debt. And the debt to saint never have it, right? And the saint themselves will take care of it. वो खुद ही अपना वो ऋण उतार देंगे. तो इस तरह से वो उन्होंने उन पे अनुग्रह किया. I thought I'll just cover something. It was similar, in terms of its pattern. तो बाबा को ना ये आदत था, he used to take, दक्षिणा लेते थे वो, दक्षिणा लेते भी थे, दक्षिणा देते भी थे. पहले कुछ साल वो नहीं करते थे, बट जैसे जैसे भीड़ बढ़ना चालू हो गया, पीपल स्टार्टेड कमिंग, ही फाउंड दिस टू बी एन इजियर वे टू लेट गो ऑफ पीपल्स कर्मा, टू बर्न पीपल्स कर्मा. ओके, मैंने पहले भी कवर किया है. दक्षिणा लेना इज व्हाट, बेसिकली हम अपना कर्मा को उनको सौंप देते हैं, फिर ही टेक्स केयर ऑफ इट एंड बर्न्स इट. दैट इज ऑल द ट्रांजैक्शन इज. वो कभी कभी एक्स अमाउंट लेते थे एक दिन में, एंड ड्यूरिंग द डे अगर किसी ने गणित रखा होगा ना, तो एक्स से ज्यादा एक्स प्लस ही वुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड आल्सो. कभी कभी लोग आते हैं तो उनको देते भी थे. उनके पास जो था उतना ही. ओके, वो कहां से आता था, कहां जाता था, कहां से निर्माण करते थे पता नहीं. ओके, किसी से वो स्पेसिफिक अमाउंट, एज आई टोल्ड 1387 लाइक महापेरिवास, ऐसे स्पेसिफिक अमाउंट ही विल आस्क. ओके, और अगर वो बोलता कि मेरे पास अभी नहीं है बाबा, तो बोलते हाँ ठीक है मैं रुकता हूं मगर मुझे दे देना. ऐसे करके यूज्ड टू समटाइम्स वेट फॉर दैट मनी टू कम. कोई किसी के पास अगर 5 रुपया मांगे और आके सामने से 10 रुपया दे देंगे तो वो 5 ही रुपया लेंगे. ही विल रिटर्न बैक द अदर. इट इज नॉट अबाउट व्हाट वी वांट टू गिव, राइट. दिस अगेन आई हैड कवर्ड. इट इज अबाउट व्हाट ही वांट्स टू टेक फ्रॉम अस. उसका पीछे कुछ रहस्य है, इस जन्म का है, पिछला जन्म का है, देना है, वो कर्म बर्न करने के लिए कितना चाहिए ये हमें नहीं पता. उन्होंने जितना मांगा हमें उतना ही देना है. दैट इज ऑल द फैक्ट ऑफ लाइफ इज, राइट. आज भी हम कभी कभी डोनेशन जब देते हैं, मैं दिल्ली में मेरे 2 बुआ रहते हैं,
उनको हम लोग तीनों चारों हम लोग गए थे शिरडी विद अलॉन्ग विद माय सन. My बुआ just got a figure in her mind, that's all. वो फिगर देना है and then she didn't waver from that. वो फिगर मन में क्यों आता है, वो ऐसे ही क्यों है, then you shouldn't question. And she ensured that she just gave that donation there. ये he just drives that process. When we have to just trust that process. वो हम छोड़ देना चाहिए, हम करेंगे, मैं दे रहा हूं, ये भाव से करेंगे ना तो वो हम कभी बराबर कर ही नहीं पाएंगे. कभी कभी बाबा मानते नहीं थे, खुद लोग आके देते थे, वो कभी हाथ नहीं लगाएंगे. कोई कोई किसी के थ्रू भेजते थे, बाबा आप शिरडी जा रहे हैं, आप प्लीज ये बाबा के चरणों में रख दीजिए. अगर वो आने वाला बंदा भूल जाए तो मान के ले लेते थे. ओके, बच्चा, बूढ़ा, हिंदू, मुस्लिम, औरत, कुछ भेद नहीं, वो किसी से भी मांग सकते थे. तो दक्षिणा मांगना, वो he had kept it in a manner that used to burn our karma depending on the जीवात्मा that is coming. Okay, so इस तरह से वो he used to ask दक्षिणा even from poor people. Okay, because दक्षिणा वहां पे is not about just money. I'll come, मैं आगे जाके ना, not this next Saturday में जब कवर करूंगा, वो एक जगह पे आके ना श्यामा से मांगते 15 रुपया, श्यामा से लेके आओ. श्यामा बोलते मेरे पास 15 रुपया है नहीं, मैं 15 नमस्कार कर रहा हूँ, बाबा यही स्वीकार कर लो. बोलते हाँ ठीक है. तो यू नेवर नो, लाइक भीष्म जी को उन्होंने, इफ यू रिमेंबर दैट एट कवर्ड, 5 लड्डू चाहिए. वो 5 लड्डू वाज एक्चुअली 5 आरती के सॉन्ग्स, राइट? सो व्हाट ही इज आस्किंग एंड व्हाट वी हैव टू गिव आल्सो ही विल लेट अस नो. ओके, दैट इज हाउ बाबा ऑपरेटेड. समथिंग रिलेटेड टू दिस दक्षिणा. ओके, आई विल कवर अ गुड स्टोरी. बहुत ब्रीफ में मैंने कवर किया था ड्यूरिंग साई बाबा स्टोरी ओनली, बट मैं थोड़ा भी डिटेल में कवर करता हूँ. There is a rich person. That rich person has got a lot of wealth, lands, family, सब है, मैं खुश है. And he is also a materialistic person. सब है करके he is also happy about it. उनके मन में सडनली आता है कि ये सब है ठीक है, मगर मैंने कहीं सुना है कि सबसे बड़ा वेल्थ इज ब्रह्म ज्ञान. ओके, नोइंग द ब्रह्मन, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मेरे पास इतना सारा वेल्थ है, मेरे पास ब्रह्म ज्ञान भी होना चाहिए. इस हेतु, ऐसे नहीं कि उनको वैराग्य आ गया है, ब्रह्म ज्ञान ऑल्सो इज अ पोजीशन. ऐसे समझ के जैसे मेरे पास पैसा है, लैंड है, फैमिली है, सर्वेंट्स है, एम्प्लॉय है, तिजोरी में ब्रह्म ज्ञान भी होना चाहिए. इस तरह से उनका मन में है. ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए जाता हूं मैं बाबा के पास. उसका दोस्त बोलता है पागल मत बनो, यू आर अ प्रॉपर गृहस्थ आश्रमी, तुमको ब्रह्म ज्ञान वगैरह से कुछ मतलब नहीं है, राइट? तुम क्यों जाना चाहते हो? तो बोलते नहीं मेरे को चाहिए, आई हैव टू हैव एवरीथिंग विद मी, ब्रह्म ज्ञान ऑल्सो हैज टू बी विद मी. तो बाबा के दर्शन के लिए आते हैं. बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, स्ट्रेट ही कम्स टू बाबा, बाजू में बैठते हैं. बाजू में बैठ के बोलते हैं बाबा मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए. बाबा हंस पड़ते हैं. बाबा बोलते हैं मेरे पास लोग आते हैं, सेहत मांगने के लिए आते हैं, पैसा मांगने के लिए आते हैं, पावर मांगने के लिए आते हैं, बच्चा मांगने के लिए आते हैं, बीवी मांगने के लिए आते हैं, बहुत कुछ मांगने के लिए आते हैं. ब्रह्म ज्ञान मांगने के लिए कोई नहीं आया. तुम अकेले हो जिसने ब्रह्म ज्ञान मांगने के लिए आए हो. मैं तुम्हें बताता हूं, दैट इज व्हाट ही आल्सो प्रॉमिसेस. ओके, मैं उसके लिए जो राह है, वो जो ब्रह्म ज्ञान पाने का राह है, वो भी मैं बताता हूं. कोई मांगता नहीं है मेरे से. ऐसे इज व्हाट बाबा सेज. बाजू में बैठा है, बातों बातों में ही डिस्ट्रैक्ट्स, बाबा डिस्ट्रैक्ट्स हिम, ही मेक्स हिम कम आउट ऑफ दैट थॉट. बेसिकली इज फॉरगॉटन, अभी ब्रह्म ज्ञान चाहिए क्योंकि इज फॉरगॉटन. बाजू में बैठा है, बाबा भी बैठे हैं. सडनली ही टर्न्स टू अ स्मॉल बॉय स्टैंडिंग देयर एंड ही सेज, अरे सुनो. ही कम्स एंड ही सेज, ये नंदू मारवाड़ी के पास जाओ और मेरे लिए ना 5 रुपए का उधार लेके आओ. ही इज नॉट सेइंग दक्षिणा, ही इज सेइंग उधार. ओके, लोन. और उनको बोलना कि मैं 2-3 दिन में वो वापस दे भी दूंगा. तो बच्चा जाता है नंदू मारवाड़ी के पास, वो जाता है, वो घर पे है नहीं, वो आता है वापस, वो बोलता है बाबा नंदू मारवाड़ी घर पे नहीं है. तो बोलता है अच्छा ठीक है, बाला के पास जाओ. बाला इज अ ग्रॉसर. ओके, इज शॉप है उनके पास. तो बाला का उनके पास जाओ, उनके पास से जाके लेके आओ, उनको बोलो मैं 2-3 दिन में दे दूंगा. वो वहां पे जाता है, वो भी नहीं है, वापस आते हैं. ऐसे 3-4 ट्रिप यहां वहां लगा रहे हैं. ये बच्चा भी जा रहा है, वापस आ रहा है कि 5 रुपया है नहीं, 5 रुपया है नहीं. ये बाजू में जो ब्रह्म ज्ञान मांगने आया था ना, ये बंदा देख रहा है ये पूरा खेल तमाशा. ओके, अब कोई नॉर्मल पर्सन, इज अ रिच पर्सन, पैसे में पॉकेट में पक्का पैसा है उसके. कोई भी नॉर्मल पर्सन क्या करेगा इमीडिएटली? बाबा को शायद 5 रुपए की जरूरत है, एक तो दक्षिणा मांगे तो भी दे सकते हैं, राइट? देना ही बनता है. ऊपर से उधार मांग रहे हैं, और बाबा थोड़ी उधारी में, ही विल नॉट डिफॉल्ट ऑन हिज लोन. 5 रुपए, कोई भी, had it been any of us, we would have what done what? 5 रुपए लेके बाबा आपको शायद 5 रुपए की जरूरत है,
आप प्लीज लीजिए, इज व्हाट वन वुड हैव डन. नो, दिस पर्सन इज नॉट डूइंग दैट. उसके पैसे, उसके जेब में पैसा है, कोई डाउट ही नहीं है, बहुत सारा पैसा है, बट इज ऑल्सो नॉट ऑफरिंग. ऑन द कॉन्ट्ररी, ही इज गेटिंग इरिटेटेड कि ये बाबा क्या कर रहे हैं, यहाँ वहां पैसे के लिए क्यों वो बच्चे को दौड़ा रहे हैं, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मुझे जल्दी जाना है, बाबा मुझे ब्रह्म ज्ञान देने का छोड़ के कुछ तो और कर रहे हैं. इंपेशेंट होके वो बोल भी देता है, वो बोलता है बाबा मैं बहुत देर से बैठा हूं, आप कुछ 5 रुपए के पीछे पड़े हो, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मुझे ब्रह्म ज्ञान कब देंगे. बाबा बोल रहे अरे तुमने जाना ही नहीं, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान ही दे रहा हूं, ये 5 रुपए के लिए मैं क्यों उसे दौड़ लगा रहा हूं, ब्रह्म ज्ञान ही मांग दे रहा हूं मैं तुम्हें. तो बोलते बाबा ये कहां का ब्रह्म ज्ञान हो गया, आप वो दौड़ा किसी और को रहे 5 रुपए के लिए, ये क्या ब्रह्म ज्ञान हो गया. बोलते तुम्हारे खिसा मीन्स, मराठी में खिसा मीन्स पॉकेट, बोलते तुम्हारे पॉकेट में मैं जितना मांग रहा हूं उसके 50 गुना ज्यादा पैसा है. वो एक्चुअली निकाल के देखता है 250 रुपया एक्चुअली है. बोलते 50 गुना रुपया है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें मैं 5 रुपया मांग रहा हूं, देने की मन नहीं कर रहा है, ये 5 रुपया है क्या. वो बोल रहे 5 रुपया तुम कुछ भी समझ लो, पंचेंद्रिय समझ लो, पंच प्राण समझ लो, अगर वही तुम मुझे अर्पण करने का क्षमता नहीं रखते हो तो मैं क्या ब्रह्म ज्ञान दूंगा, इज व्हाट ही सेज. फिर भी तुम इतने आस लेके आए हो ब्रह्म ज्ञान मांगने के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करने के लिए क्या मार्ग है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था मैं बताऊंगा, तुम्हें बताता हूं, सुनो. इज व्हाट बाबा हिमसेल्फ गिव्स अ प्रवचन, a discourse on how to attain brahma gyan. Now this is again a belief, all of us generally have, okay. हम संतों को ना अपने हिसाब से, हम जो बाह्य रूप में देखते हैं उस हिसाब से हम ना उनको वे करते हैं, वी वे देम, ओके. बाबा ठहरे एक मुस्लिम, बाबा ठहरे एक फकीर, उनको क्या ब्रह्म ज्ञान के बारे में पता रहेगा, उनको क्या संस्कृत के बारे में पता रहेगा, उनको क्या अद्वैत के बारे में पता रहेगा. बड़े संत है, मांगते हो देते हैं, वो हमारा मन को भी पढ़ लेते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान इज अ पार्ट ऑफ द अद्वैतिक फिलोसफी, राइट. वॉल्यूम्स रिटन ऑन इट. बाबा को संस्कृत भी नहीं पता होगा, इलिटरेट है, कहां से पता होगा ये सब, ये अपने मन में जनरली रहता है, राइट. इट इज विवेकानंदा ना यूएसए गए थे, वी ऑल नो राइट, द फेमस स्पीच सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, 3 मिनट दिया था उनके लिए टाइम. एक्चुअली उनका ना, आई लव नरेटिंग दिस स्टोरी, ओके. स्वामी विवेकानंदा इज देयर इन द कॉन्फ्रेंस, रिलीजियस, इन द रिलीजन कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन, डायस में बैठे हैं, उनका टर्न आता है, बट ही इज अफ्रेड. Small kid, right, 24 years old boy, right, sitting there in the international forum representing the entire nation. And what nation? सनातन धर्म का नेशन को एक 3-4 मिनट में बताना is not a joke, right? तो स्वामी विवेकानंद बैठे हैं, डरे हुए हैं, he is not going, नहीं किसी और को बोलो, किसी और को बोलो, he is the last speaker, अभी कोई और है ही नहीं, तो you have to only come and talk, right? He comes and stands there, he just for a moment thinks of his guru, Gurudev Ramakrishna Paramahamsa. What it delivers was history, right? 3 मिनट तो सिर्फ क्लैप्स हुए, उसके बाद टाइम एक्सटेंड करके he was given 5 minutes. He becomes very famous. स्वामी विवेकानंद becomes very famous across in US. लोग मिलने आ जाते हैं, लोग उनके बारे में सुनने के लिए आतुर हैं. So सब लोग बोलते हैं स्वामी विवेकानंद आप इतने अच्छा बात करते हैं, you talk of so many things, you are so intelligent, you are so learned, you know so many things. You have to tell about your story to us. तो पहले वो टाल देते हैं कि अपने बारे में क्या बताना. फिर उनको एक आइडिया सूझता है, बोलते हैं हाँ मैं बताता हूं अपने बारे में, तुम जाओ विज्ञापन करो, मेक एन एडवर्टाइजमेंट, मेक अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी, लेट लॉट ऑफ पीपल गैदर, ओके, मेक इट अ ह्यूज इवेंट. तो ही टेल्स एवरीबॉडी. सो काफी पैम्पलेट बढ़ता है, उस जमाने में तो देयर वाज नो सोशल मीडिया, सो पैम्पलेट बढ़ता है, सब लोग आ जाते हैं, बड़ा हॉल अरेंज करते हैं, एंड विवेकानंदा स्टार्ट्स टॉकिंग. ही स्टार्ट्स टॉकिंग फ्रॉम खुदीराम, दैट इज रामकृष्ण परमहंसा's फादर. कंप्लीट 2 hours ही नैरेट्स रामकृष्ण परमहंसा स्टोरी. खुद के बारे में कुछ नहीं बताया, पूरा का पूरा गुरु का ही entirely narrates his charitra, and he says to such an illiterate, unlettered, enlightened guru, I am just one of the disciples amongst the hundreds that he has. That is how he ends, okay. He says, my guru was an unlettered, enlightened guru. Unlettered because Ramakrishna Paramahamsa कोई स्कूल गए ही नहीं, okay. ये हमने उनके चरित्र में देखा है, 2-3 दिन गए थे बस स्कूल, बट उनको स्कूल की क्या जरूरत है, राइट. रामकृष्ण परमहंसा को हम स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे एक संत थे, राइट.
about whom we read. ऐसे एक संत थे. गुरु का जो प्रभाव है, गुरु learns not from the formal mechanism, right? They are avatar, वो सब जानते हैं. So to put a way saying that ये जानते होंगे, ये वो नहीं जानते होंगे is wrong. तो Baba apparently has given, and I will cover this a little detail. Why I want to cover? Because Baba has spoken of all these things in just one or two instances. Baba has never given any ज्ञान to anybody, right? वो कभी किसी को कुछ ज्ञान नहीं देते थे. वो इतना ही बोलते थे, मेरी ध्यान रखो, मेरे पे अपना ध्यान को केंद्रित करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा. So him giving some discourse. Okay, we heard about Chandorkar को गीता का discourse किया, which was never written down. So that's a loss. But this somehow got noted. तो बाबा gives 10 steps of how to attain ब्रह्म ज्ञान. वो बोलते हैं पहले मुमुक्षुत्व, मतलब an intense desire to seek the truth. You should become a mumukshu, a person who seeks out the ब्रह्म ज्ञान. वो seeking होना चाहिए, वो internally आना चाहिए. It has to be intense. Secondly, he says there has to be vairagya. Vairagya is a little different from virakti. Virakti comes from disgust. It has a disgust. It has a distaste. छह, इतना ही है जिंदगी. That is virakti. Okay, there is a disgust, there is a distaste to it. But vairagya is not with distaste. There is no disgust. There is empathy, but still detachment. Okay, तो वो material world से interest निकल जाना चाहिए, उसके प्रति द्वेष के बगैर, उसको वैराग्य बोलते हैं. वैराग्य में भी, for example, मैं generally यही example देता हूँ, मुझे ना बैंगन पसंद नहीं है, तो मैं बैंगन का भाजी देखता हूँ ना, तो छे, तो that is virakti. Okay. Getting detached from something that you don't like is very easy, but it is also temporary. So my wife finds a different way of feeding me bangan. She makes it tasty and gives me, which means there is no real vairagya there. Okay. Now I like besan laddu a lot, but if I am able to avoid the temptation, then it becomes vairagya, right? So it should not have come out of disgust. It should not come out of distaste to life. It has to come out of vairagya. Vairagya mein bhi na, there are two vairagyas. Okay, one is a karana vairagya and then there is a viveka purva vairagya. Karana vairagya is because of some event and it is temporary in nature. There are basically one or two vairagyas. One is a smashana vairagya. हम जब अपने पिता, माँ, भाई, दोस्त किसी को खो देते हैं, स्मशान भूमि जाके आने के बाद हमें एक दिन के लिए ना एक वैराग्य आ जाता है. हमारे साथ रहे, हमें बच्चे से बड़े किए, lived a life, but is no more, खात्मे मिल गए, right? That futility of life suddenly dawns on us. इसको स्मशान वैराग्य बोलते हैं. वो एक दो दिन ही रहता है, वो रहता है, स्ट्रांग होता है, बट वो एक दो दिन ही रहता है. इट इज टेम्पररी. उसके बाद तो हम अपने कार्य में लग जाते हैं, as if हमारा कोई अंत ही नहीं है. हम भी लाइन में लगे हुए हैं और 1 वे टिकट दिए, सबको जाना ही है, बट हम लगते इस तरह से अपना काम करते हैं जैसे कि हम सबसे ज्यादा रहने वाले हैं, हम कभी मरने ही नहीं वाले. इस तरह से हम जिंदगी गुजारते हैं, राइट? There is a very another beautiful one which is called as a prasava vairagya. Okay, I am presuming all elders are listening to this. Prasava vairagya is basically what a woman goes through after the first delivery. That pain, that intense pain के बाद, it seems the woman generally promises to herself that she will never ever again get pregnant. Okay, that is called as prasava vairagya. We know how temporary that is, right? But what vairagya is more important is viveka purva vairagya. Viveka purva vairagya is a vairagya which comes out of wisdom. Viveka is wisdom, not knowledge. It is not intelligence, it is wisdom. विवेक पूर्व वैराग्य इज वेयर विजडम के वजह से, हाँ माया है, झूठ है, इसका लगाव झूठ है, इससे हमें हटके परे रहना चाहिए. दैट डिटैचमेंट इज क्रिटिकल. दैट इज व्हाट बाबा सेज. वैराग्य, अंतर्मुख होना, मतलब हम बाहर देखते रहते हैं, राइट? एवरीथिंग वी आर लुकिंग आउटवर्ड्स. द मोमेंट वी स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड्स, इट इज द सेम गॉड हु इज सिटिंग इनसाइड अस. एलिमिनेटिंग ऑल द ग्रॉस थॉट्स, फिजिकल थॉट्स, फिजिकल नीड्स को अवॉइड करना. राइट कंडक्ट, कर्मा एज पर धर्मा. धर्मा में जिस तरह से बोला है कर्मा उस तरह से करना, और कर्मा को करते वक्त काम मतलब डिजायर. ओके, निष्काम से करना, मतलब देयर शुड नॉट बी डिजायर अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर कर्मा. फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल मैटर्स, कंट्रोलिंग माइंड एंड सेंसेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड. दीज आर द 8 steps he says, and he finally says necessity of a guru. गुरु की जरूरत होती है.
ऊपर के सारे जो 8 स्टेप्स है, एक अगर गुरु मिल जाए तो वो 8 स्टेप्स धीरे 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 वो तुमसे ऑटोमेटिकली करवा लेगा। एक जन्म में नहीं, 2 जन्म में नहीं, 10 जन्म में नहीं, शायद 100 जन्म में, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही विल एंश्योर दैट ही विल टेक केयर ऑफ यू एंड यू प्रोसेस थोड़ा धीरे धीरे करके 8 प्रोसेस से लेके जाएंगे। एंड फाइनली ऑफ कोर्स ही सेड देयर हैज टू बी ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा के बगैर कुछ भी नहीं होगा। ही व्हाट ही सेज 10 स्टेप्स बाबा हिमसेल्फ हैज टोल्ड अबाउट ब्रह्म ज्ञान। ये सब बताने के बाद ना बहुत लोग सुन रहे हैं, उस दिन बाबा बात करने के मूड में है, बाबा बहुत लोग सुन रहे हैं। ये सब बोलने के बाद बोलते हैं बाबा बोल तो दिया मगर ये सब तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हारा ख्याल रख दूंगा। Because he asked what Brahma Gyan is, he gave the knowledge of Brahma Gyan. But Baba says for you, बच्चों, it is going to be difficult, right? मुमुक्षु, वैराग्य, अंतर्मुख होना, eliminating all the basic thoughts, right conduct, क्या सही है क्या गलत है ये सब पहचानना, स्पिरिचुअल मैटर्स में करना, साधना करना, ये सब तुम लोग को जमेगा नहीं जमेगा पता नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना करना है, माँ के गोद में बच्चा बन जाना है, right? You have to just pay attention to me, I will take care of you. He goes on to says, मेरा ट्रेजरी, मेरा खजाना ना भरा हुआ है, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा, is what he says. तुमको जो चाहिए वो मैं दे दूंगा, सिर्फ ध्यान मेरी तरफ केंद्रित रखो. That is what Baba says and blesses. What happens is, ये ब्रह्म ज्ञान जो इनको देने के हेतु जो दिया है, basically give it to us, right? He told that these are the steps for Brahma Gyan, yes, but he also went on to say कि for you, you don't have to bother because I am there to take care of you. All you have to do is just take care of me. स्वामीगढ़, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के पास ना, तमिल में ना, there is a word called ta. Ta means to give, okay? Ta means दे दो, okay? Give, दे दो मुझे. The word is ta. दादाजी के लिए the word is tata, okay? So the reason I'm giving you this pre-information is because this Leela has got that Tamil angle to it. So ta means give, tata means dada, okay? तो एक there is a devotee who comes to Nanda Swamigal, वो बोलते हैं परब्रह्म स्वरूप है आप, भगवान के अवतार हैं, लोग क्या कुछ मांग के जाते हैं, आप ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं देते हैं, you know? आप इतने बड़े हैं, इतने बुजुर्ग हैं, तो बोलते हैं मुझे सब लोग ताता बुलाते हैं और मैं भी देते जा रहा हूं. He says he takes tata as in दादाजी, लोग उन्हें दादाजी करके बुला रहे हैं, but he takes it as what? ता, give, दे is what people are saying. मैं भी देते जा रहा हूँ is what he says. वो बोलते हैं मैंने दुकान खोल के रखा है, मेरे पास भाजी भी है, फल भी है, डायमंड भी है, गोल्ड भी है, जो चाहिए वो लेके जाता है, मेरे पास हजारों रुपए हैं, कोई 10 रुपए मांगेगा तो मैं दूंगा नहीं क्या? So I'll give whatever if you want, I will keep giving it to you. That is what Jnananda Swamigal also says. Very similar to Baba. So I thought I'll just give a connection to that. बाबा के लीलाएं ऑफ कोर्स जिस तरह से कुछ सीरियस भी हैं, उसे हास्य लीलाएं भी हैं, उसमें से एक आई थॉट आई विल पिक अप. एक बार क्या है ना, वेरी मिस्टीवियस. तो बाबा बैठे हैं मस्जिद में, मस्जिद में नीचे बैठे हैं, ऊपर वॉल पे देयर इज अ लिजर्ड. ओके, ये आजकल हम लोग जमाने में देखते नहीं है, उस जमाने में घर पे सब लिजर्ड यूज्ड टू बी अ कॉमन विजिटर इन द हाउस. लिजर्ड का होना आल्सो इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट यूज्ड टू ईट ऑल द इंसेक्ट्स. ओके, it's a symbiotic relationship, right? That we have with nature. आजकल हम लोग पेस्ट कंट्रोल में क्या है, कीड़ों को भी मार देते हैं, and we don't even allow the lizards to come. So lizard मस्जिद के वॉल पे घूम रहा है, and it is making that noise. So lizards make a noise, ऐसा टिक 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 करके it's making a noise. And उस दिन कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहा है. Okay? तो हमारे में ना, I have covered this when I covered Ramayana also. We have something called as Shaguna Shastra and Nimitta Shastra. Okay, Shaguna Shastra and Nimitta Shastra means Shakun means birds. Nimitta Shastra is with animals. Animals के movement, birds के movement या birds और animals के बोली को रख के future का to foretell future. Okay, उसको शकुन और निमित्त शास्त्र बोलते हैं. So it is not that they are telling something about the future. Their behavior indicates something about the future. So generally you will find if there is an earthquake, you will find that animals start moving towards an upper plane. There is a sudden rush of animals because those animals are far more tuned to nature. They are able to foretell natural happenings.
ओके वेल वी ह्यूमंस बिकॉज भगवान ने हमको बुद्धि दे दी है ना, तो वो हमारा बाकी के सब सिक्स सेंस निकाल दिया है. ओके सो वी आर नॉट ट्यून टू नेचर बट वी आर एबल टू सी. हमारे लोग वी आर एबल टू सी फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड फोरटेल कि क्या होने वाला है. देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी है, रामायण में मैं कवर भी किया था. व्हेन राम सीता का जब शादी हो जाता है, विवाह होने के बाद वो निकलते हैं, तो पीपल दशरथ वगैरह निकलते हैं, तो द मिनिस्टर से कि ये शगुन और निमित्त शास्त्र कुछ कहता है, कुछ तो अनर्थ होने वाला है, राइट. देयर इज सडन मूवमेंट ऑफ बर्ड्स, सडनली दे आर फ्लॉकिंग टू अ डिफरेंट डायरेक्शन. एनिमल्स का देयर इज अ हेल्टर स्केल्टर, दे आर रनिंग. तो दैट दोस पीपल से कुछ तो अनर्थ होने वाला है. एंड दैट इज द टाइम व्हेन परशुराम कम्स, परशुराम कम्स एंड एज अ डिफिकल्टी, बट वी नो व्हाट हैपेंस टू दैट स्टोरी. तो हम लोग में ये होता है. ओके सो पीपल जनरली, कौवा अगर आके काव काव करेगा तो उसका क्या मतलब है, अतिथि आएगा, वी रिलेट दीज थिंग्स. ओके dogs should not howl, okay, because dogs apparently can see spirits. Okay, so they should not howl. तो ये सब ना, these are all पूर्व सूचना. Okay, this is all पूर्व सूचना that we get. तो एक डिवोटी बैठा है, वो उसका ध्यान वो लिजर्ड के पास जाता है and it's making a lot of noise. तो बाबा को पूछते हैं, बाबा ये आज बहुत आवाज कर रहा है, ये अच्छा शगुन है कि कुछ बुरा होने वाला है? इस व्हाट ही आस्किंग बाबा. बाबा हंसते हैं, बाबा बोलते हैं इसमें क्या बुरा और अच्छे की बात है. वो बहुत खुश है कि उसकी सिस्टर उसकी दीदी आने वाली है, औरंगाबाद से आने वाली है, तो उसको पता है वो आने वाली है, तो खुश है वो कि वो सिस्टर से मिलने वाली है. तो दिस डिवोटी डजंट अंडरस्टैंड, ही इज टॉकिंग अबाउट लिजर्ड, और बाबा भी लिजर्ड के बारे में बात करी है. उनको समझ में नहीं आ रही लिजर्ड का सिस्टर औरंगाबाद कहाँ, शिरडी कहाँ, हाउ इज अ लिजर्ड गोइंग टू ट्रैवल, और इसको बहन नहीं है, बाबा को कैसा पता है, ऑल दिस डाउट्स. बट वो चुप बैठ जाता है, वो ही डजंट डेयर टू आस्क एनी क्वेश्चन. 5 मिनट के बाद there is a tonga that comes. There is a person who gets down. That person is a trader and is come from Aurangabad. Okay, वो औरंगाबाद से आते हैं. वो उतरते ही पहले क्या करते हैं, बिफोर टेकिंग दर्शन, व्हाट ही डज इज ही टोंगा से वो हॉर्स ग्राम, मतलब जो घोड़े को जो खिलाया जाता है ना, इज डन अ लॉन्ग जर्नी, ही वांटेड टू रीच बाय पर्टिकुलर टाइम, सो ब्रेक लिए बगैर वो आता है. वो पहले घोड़े को खिलाना चाहते हैं, तो वो ही टेक्स दैट सैक, टोंगा में से वो सैक निकाल के वो पहले ही डैशेस इट ऑन द ग्राउंड. ऐसे वो ही डैशेस ऑन द ग्राउंड ताकि वो डस्ट निकल जाए, और फिर वो घोड़े को खिलाते हैं, खिलाने के लिए वो सामने रख देते हैं. व्हेन ही डैशेस दैट, वहां से एक लिजर्ड बाहर निकल के आती है. ओके, एंड इट सडनली क्लाइम्स ऑन द वॉल. कोई देखता नहीं है, बाबा ऑफ कोर्स नोस. तो बाबा वो डिवोटी को ऐसा इशारा करके ही शोज दैट लिजर्ड ऑन द वॉल. That lizard now moves across the wall and it goes right in front of that earlier lizard which is sitting there. And those lizards, it seems, they circle each other and as if they are very happy. And दोनों टिक 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 आवाज कर रहे हैं, and then they are circling each other as if they are dancing and they are happy. तो ये देख के वो ना डिवोटी को बोलते हैं, देखो बहन आ गई है. So that person is astonished. शिरडी कहाँ और औरंगाबाद कहाँ फॉर अ लिजर्ड टू ट्रैवल, राइट. एंड बाबा को कैसे पता है ये बहन आ रही है, भाई आ रहा है इसको, एंड दिस लिजर्ड इज डांसिंग. पता नहीं है वेदर इट इज अ लीला, वेदर दैट लिजर्ड हैज रियली ट्रैवल्ड दैट डिस्टेंस. बाबा बेसिकली शोज दैट ही नोज एवरीथिंग, राइट. वो एक सर्वज्ञ मूर्ति बन के बैठे हैं, ये हर एक चीज में वो दर्शाते हैं. इस तरह से वो हास्य लीला में भी उन्होंने दर्शाया कि मुझे सब पता है, मुझे नॉट ओनली अबाउट मैन, पीपल, मैन आई मीन as humans, I have attention even to animals. Is what he showed through this leela, in a very light mannered way. Okay, I am already at 11 o'clock, but I will anyway cover this beautiful story because नहीं तो अगले हफ्ते के लिए बहुत ज़्यादा रह जाएगा. This is a beautiful story. I will cover this. हेमंत पंत ना एक बार बैठे हैं वेंसडे नाइट को शिरडी में, ही इज देयर. सोते सोते उनको मन में ऐसा ख्याल आता है कि कल गुरुवार है, बाबा को राम बहुत पसंद है, कल का दिन राम नाम में गुजारना चाहिए. ऐसे करके उनको मन में ख्याल आता है. क्यों आता है पता नहीं, गुरु सन्निधि में राम नाम जप करके यू शुड स्पेंड द डे, ऐसे करके उनके मन में आता है. बाबा इज नेवर इग्नोरेंट अबाउट आवर थॉट्स, राइट. वो सब कुछ जानते हैं, राइट. गलत थॉट होगा तो वो
उसको डांटेंगे भी, ही विल ऑल्सो कंट्रोल दैट। अच्छा थॉट होगा तो उसको बढ़ावा भी देंगे, गलत थॉट हमने देखा है चंदोरकर कैसे व्हेन ही सॉ ब्यूटीफुल मुस्लिम लेडी, वो आते ही हाउ डिड ही पुट इट चेक, इमीडिएटली पुट इट इन चेक, राइट, वो भी हमने देखा है। इनको अच्छा थॉट आया है राम नाम में दिन गुजारना, उसको कैसे बढ़ावा देना ये भी बाबा को पता है। तो अगले दिन मॉर्निंग ही गेट्स अप, पूजा वगैरह करके मस्जिद की तरफ चलने लगते हैं, तो दूर से उनको आवाज सुनाई देता है, देयर इज समबडी हु सिंगिंग अ भजन, ओके, एंड उस दिन ही सिंगिंग अ राम भजन। औरंगाबाद कर करके एक डिवोटी थे, वो एक राम भजन गा रहे हैं, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु देखत नाही, ओके, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कबीर महाराज भजन, ओके। Okay, there are two versions to it. Okay, there are some people, including, I need to respectfully put it, including in Satcharitra, they have said that this is an Eknath Maharaj ka bhajan. I am no one. Okay, I am no one to even voice my difference to it. Maybe it is true, but in my humble view and opinion, ये कबीर महाराज का भजन है. Because of the boli, because of the language in which this bhajan is, and there is also a story to it. Okay, I'll just come to that. Okay, तो होता क्या है, ये बाबा ने इन्होंने ऐसे एक भजन करवाया है। हम लोग को क्या होता है ना, you must have also noticed this. Okay, हम जब सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद अगर रेडियो पे या टीवी पे या जाते जाते हम लोग गाड़ी में अगर एक गाना सुनते हैं ना, सुबह जो सुनते हैं जनरली हम दिन भर उसको गुनगुनाते रहते हैं मन में। ओके, वो जहन में आ जाता है, इट कम्स इनटू आवर कॉन्शियस, वो अनकॉन्शियसली वी स्टार्ट हमिंग इट, और वो दिन भर गुनगुनाते रहेंगे। ओके, सो बाबा एंश्योर्ड वन मोमेंट, हेमंत पंत आते हैं तो बाबा ऐसे इशारे में दिखाते हैं राम भजन हो रहा है, ही डजंट टॉक, ही सेज राम भजन हो रहा है, मतलब तुम्हारे मन में था कल, इसलिए मैंने राम का भजन करवाया, इज व्हाट ही सेज, सो दैट वो राममय हो जाए वो पूरा दिन उनके लिए। He enabled the process. छोटा से छोटा थॉट भी बाबा will ensure that he takes care of it. ये इस लीला से पता चलता है। I'll just quickly come to the bhajan, because I said that it probably might not be Eknath Maharaj's bhajan and it could probably be Kabir Maharaj's bhajan. तो होता क्या है? Let me go back a little bit. So, sorry, just give me a second. उद्धव और कृष्णा, ओके, वैकुंठ में बैठे हैं, तो कृष्ण को ना सरदर्द होता है। सरदर्द होने के बाद उद्धव was considered to be one of the closest devotees of Krishna. वो इतने क्लोज थे कि वो उनको कृष्ण का छाया लग चुका था, मतलब वो कृष्ण की तरह दिखना चालू कर चुके थे। He started looking like Krishna. इतने कृष्ण के जो इतने भक्त थे और डिवोटी थे। ओके, उद्धव, कृष्णा ने जिस तरह से अर्जुना को भगवत गीता सुनाया था, वैसे ही उन्होंने उद्धव को भी सुनाया था, एंड दैट वाज व्हाट इज गेट्स नोन एज उद्धव गीता। ओके, वेरी फेमस, अगेन फिलोसॉफी में, बट हमको फिलोसॉफी से क्या लेना देना। सो हम वी विल कंसंट्रेट ऑन द भक्ति साइड ऑफ द स्टोरी। तो उनको सिरदर्द होता है, तो वो बहुत दर्द लेके बैठे हैं कृष्णा, तो उद्धव आते हैं, बोलते हैं कृष्णा क्या हुआ? तो बोलते हैं मुझे बहुत सिरदर्द हो रहा है। तो बोलते क्या करें फिर इसके लिए? तो बोलते हैं मेरा कोई अगर सच्चा भक्त होगा, उसका पैर का धूल लेके अगर मेरे माथे पे लगा देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। उद्धव इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटीज, डिसाइपल्स ऑफ कृष्णा। ओके, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं कर रहा है कि अपना पैर का धूल दे, बिकॉज उनको लगता है कि मैं अपना पैरों का धूल अगर मेरे गुरु या मेरे भगवान पे लगा दूं तो मुझे पाप लगेगा। is the thought that Uddhava has. तो he is not volunteering himself. Okay, कृष्णा बोलते हैं कि यार तुम अपने आप को भक्त मानते हो तो तुम्हारा पैर का धूल तो दे दो। बोलते हैं नहीं कृष्णा, मुझे पाप लगेगा, मैं नहीं मेरा पैर का धूल देने वाला हूँ। तो वो बोलते हैं यार मेरा फिर ये सरदर्द कैसे ठीक होगा? थोड़ी देर के बाद कृष्णा सोचते हैं, बोलते हैं तुम एक काम करो, तुम वृंदावन जाओ, वहां पे कोई गोपिका मिले तो उनका ना पैर का धूल लेके आके मुझे दे दो। तो बोलते हैं कोई एनीबडी इन द राइट सेंसेस व्हाई वुड ही डू दैट? यू नो, nobody would want to volunteer is what Uddhava is thinking. तो उद्धवा को बोल दिया काम करो, तो उद्धव बोलते ठीक है मैं जाता हूँ, वृंदावन जाते हैं, वहां पे कोई गोपिका, they are just going towards the घाट, तो बोलते हैं
मैं, वो दिखते भी कृष्ण की तरह ना, तो दे सडनली दूर से उनको लगता है कि कान्हा आ गए, तो सब आ जाते हैं इनके पास। तो बोलते नहीं नहीं मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं उद्धवा हूँ, उनका आई एम हिज डिवोटी, आई एम हिज असिस्टेंट। उन्होंने ही भेजा है लेकिन आप लोगों के पास। वो बोले उनको सरदर्द हो रहा है और उन्होंने बोला कि आपके अगर चरणों के धूल मिल जाए तो वो अपने सिर पे लगा देंगे, इज व्हाट ही इज रिक्वेस्टिंग। तो इमीडिएटली ऑल द गोपिकास दे ऑल टच देयर फीट और धूल देके रख देते उसके हाथ में। तो उद्धव इज एस्टनिश्ड, बोलते ये क्या हो गया। तो बोलते हैं ये आप लोगों को डर नहीं लगता है कि आपका पैरों का धूल अगर आपके भगवान के माथे पे लगा तो आपको पाप लगेगा। बोलते हैं हमको क्या पाप और पुण्य से लेना, हमारे कान्हा को अगर सिर में दर्द है तो हम नहीं ख्याल रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा, एंड हमारा ख्याल रखने के लिए तो कान्हा है ही। You don't bother about us, you go and give this, if he is going to get okay with this, then this is what we are going to do। तो ये देख के ना उद्धव हिल जाते हैं, बोलते हैं ये क्या भक्ति का फॉर्म हो गया, आई एम नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड टू दिस एट ऑल, आई डोंट नो इवन हाउ टू रिएक्ट। तो वो कृष्ण के पास आते हैं, कृष्ण क्या लीला ही है ना, वो लगाते हैं ठीक हो जाते हैं, उनको कहाँ सर में दर्द था। तो वो उद्धव इज वेरी एस्टोनिश्ड, वो बोलते हैं कृष्ण ये क्या भक्ति का फॉर्म है। वो बोलते हैं ये प्रेम भक्ति का फॉर्म है। वो बोलते उद्धवा ये ऐसा एक प्रेम भक्ति का फॉर्म है जिसका मेरे पास भी इलाज नहीं है, मैं भी उनके वश में हूं, मैं ऐसे भक्तों का दास बन के रहता हूं। वो अगर मुझे प्यार से रखे तो मैं प्यार से ले लेता हूं, वो अगर मुझे डांट ले तो मैं डांट भी खा लेता हूं, वो अगर मुझे मार दे तो मैं मार भी खा लेता हूं। ये ऐसे वश में रखने वाला एक प्रेम भक्ति है, इससे बड़ा भक्ति का कोई मार्ग नहीं है, इज व्हाट कृष्ण सेज। एंड ही सेइंग मैं खुद हेल्पलेस हूं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस भक्ति फॉर्म। ये सब सुनने के बाद ना उद्धव को मन में आता है, वो बोलते हैं ये सब मैंने कभी अनुभव किया ही नहीं है। बाकी सब उद्धव गीता वगैरह सुना दिया मुझे तुमने, फिलोसफी दिखा दिया, कर्म मार्ग अनुभव, ये सब भक्ति मार्ग में भी ये वाला नहीं सिखाया कभी मुझे ये अनुभवना है। तो बोलते ऑल इन गुड टाइम, आएगा एक टाइम व्हेन यू विल गेट टू एक्सपीरियंस दिस। उसी तरह शुक मुनि करके है, मैंने पहले बताया व्यास महर्षि के सुपुत्र थे। शुक इज इन पैरेट, उनका मुंह पैरेट की तरह था। वो जन्म था, मतलब बाय बर्थ ही वाज अ जीवन मुक्ता। ओके, ही वाज इवन बियॉन्ड हिज फादर इन टर्म्स ऑफ हिज डिटैचमेंट टू वर्ल्डली अफेयर्स, ही वाज इवन बियॉन्ड हिज फादर। इस तरह के जीवन मुक्त एक अद्वैती ऋषि थे। उनको भी प्रेम भक्ति लेने का, आनंद लेने का इच्छा था। तो कलयुग जब आता है ना, तो कृष्ण दोनों को बुलाते हैं उद्धव और शुक मुनि को बुलाते हैं, बोलते हैं अभी समय है, तुम्हें भक्ति का रस चखना था, प्रेम भक्ति का रस चखना था, तो तुम धरती पे जाओ, अवतार लो एंड देन एंजॉय दैट प्रेम भक्ति। बट दोनों एक शर्त डालते हैं कि हमें अयोनि जन्म चाहिए, हमको किसी के कोख से जन्म नहीं चाहिए, लेट अस बी बोर्न नॉट टू एनी ह्यूमन। तो कृष्णा ब्लेसेस। तो कृष्णा व्हाट इट डज, दिस इज व्हाट इज देयर। ओके, मैं जो बता रहा हूं, ये कहानी जो है वही बता रहा हूं। ही पुट्स देम टू बेबीज इनटू टू बिग शेल्स, एक गंगा में बहा देते हैं और एक भीमा नदी में बहा देते हैं। भीमा नदी में उद्धव को बहाते हैं, वो आके चंद्रभागा में, वहां पे देयर इज अ टेलर, पंढरपुर में देयर इज अ टेलर who comes to take bath on that day. He finds a beautiful baby floating. He picks that baby, उनके घर में निसंतान थे, he picks that baby and gets it home. वो बन जाते हैं नामदेव महाराज। Okay, that is how Namdev Maharaj was born. He was found by his father, Taylor family. शुक मुनि कहाँ गए, गंगा में उन्होंने बहाया है। तो वहां पे that day a Muslim has come to take bath. वहां पे beautiful child is floating around. वो भी निसंतान है, वो उठाते हैं एंड ही बिकम्स कबीर महाराज। ओके, तो कबीर महाराज वाज फाउंड, ही वाज ब्रॉट अप बाय अ मुस्लिम फैमिली। ओके, so that is the story of Kabir Maharaj and Namdev Maharaj. I will concentrate on Kabir Maharaj. तो कबीर महाराज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, is growing up into a nice lad. Okay, कहाँ पे है, काशी में। Okay, काशी संतों की भूमि है, भगवान की भूमि है, संतों की भूमि है, बहुत सारे आश्रम, बहुत सारे संत। That is how the atmosphere is there in Kashi. तो काशी में रह रहे हैं, वहां पे उस वक्त ओके, कबीर was brought up by a जुलाहा weaver. Okay, by जाति he was a जुलाहा। तो वहां पे there was a आश्रम of रामानंद स्वामी। ओके, रामानंद आचार्य जी करके एक बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़ा आश्रम था। एक ऐसे गुरु जिन्होंने बहुत
संतों को निर्माण किया. ओके, रामानंद आचार्य जी इज द गुरु टू कबीर महाराज. रामानंद आचार्य जी इज द गुरु टू संत रविदास. संत रविदास इज द गुरु टू मीराबाई. सो यू कैन जस्ट इमेजिन, ही इज द गुरु टू इवन मीराबाई. ओके, सो इस तरह से संतों को निर्माण करने वाले एक महागुरु थे रामानंद आचार्य. इफ यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ माउली, विठल पंत, उनके पिताजी जब घर से निकल के चले जाते हैं काशी, तो रामानंद आचार्य के यहीं पे जाके वो शिष्य बन जाते हैं. ओके, फिर रामानंद आचार्य जब आळंदी आते हैं तो उनको पता चलता है कि विठल पंत वहां पे है, एंड ही कम्स एंड देन द होल स्टोरी पैन्स आउट. वी नो माउली स्टोरी वेरी वेल. तो ऐसे एक बड़े संत वहां पे उन्होंने, उनका आश्रम था. मीराबाई ऑल्सो, सो टेक्निकली लेट मी क्विकली कवर, स्टोरी से स्टोरी जा रहा हूं, सॉरी. मीराबाई थी कृष्ण भक्त. ओके, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राइट, फॉर हर गिरिधर वॉज दी ओनली गॉड. वो गिरिधर का जो स्टैचू था, वो फ्लूट प्ले करने वाला, दैट स्टैचू वाज आल्सो गिवन बाय संत रविदास, हिज हर गुरु. मगर उनको जो मंत्रोपदेश हुआ वो राम का था, बिकॉज रामानंद आचार्य वॉज अ राम भक्त. उनको जो मंत्र उपदेश हुआ वो राम का ही उपदेश हुआ था. ओके, दैट इज हाउ दैट फेमस सॉन्ग, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राइट. शी स्टार्ट्स सेइंग पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बट व्हेन शी एंड्स शी सेज मीरा के प्रभु गिरिधर नागर. दैट इज हाउ शी एंड्स, राइट. उनके लिए भेदभाव कुछ था ही नहीं. तो रामानंद जी वहां पे इज स्टेइंग देयर. कुछ संतों का ना ये जॉब डिस्क्रिप्शन था कि वो और संतों को निर्माण करे. ऐसे संतों का भी कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन होता है. कबीर महाराज, नामदेव महाराज, माउली, महापेरिवा, आदिशंकरा आर सेंट्स फॉर अस. मगर जब वो अवतार लेते हैं, जैसे उनको माँ पिता की जरूरत होती है, जब अवतार लेते हैं तो एक माँ और पिता की जरूरत होती है, इसी तरह से उनको एक गुरु की भी जरूरत होती है, राइट. उनको गुरु बनने के लिए भी एक देयर इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन गिवन टू सम पीपल. गोविंदपादा, हिज जॉब इन हिज लाइफ, उनका अवतार का कार्य इतना ही था कि वो आदिशंकरा को गुरु बने. ही वॉज वेटिंग ऑल हिज लाइफ फॉर दैट शंकरा, दैट 8-year-old बॉय टू कम एंड बिकम हिज गुरु. ओके, सो गोविंदपादा महाराज का वही था ड्यूटी, राइट. दैट इज हाउ इट वाज. इफ यू एक्चुअली गौर से अगर हम रामकृष्ण परमहंस का भी स्टोरी जाने, उनका पूरा अवतार कार्य वाज ओनली फॉर वन पर्पस, एंड दैट वाज टू गिव ब्लेसिंग्स टू नरेंद्र एंड क्रिएट स्वामी विवेकानंद फॉर द वर्ल्ड. वो एक्चुअली बोल देते हैं, जब नरेंद्र आते हैं ना तीसरे बार, वो बोलते हैं तुम कहां पे थे इतने साल. वो चूमते थे, वो ऐसे सहलाते थे, रो देते थे. एक गुरु अपने शिष्य को मिलने के लिए रोने वाले गुरु शायद रामकृष्ण परमहंस एक ही थे. बोलते कितने साल तुमने मुझे रुका दिया, ये जो देह में बैठा हूं मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बैठा हूं, इज व्हाट रामकृष्ण परमहंस सेज. उन्होंने जो लीलाएं की थी, but he came down. His job description was for creating Swami Vivekananda, and we now know what Swami Vivekananda did because of his guru's anugrah. तो ऐसे भी गुरु हैं जो गुरु संतों को निर्माण करने के लिए सिर्फ आते थे. ऐसे one of them was रामानंद जी. तो कबीर जी ना was very attracted to Ramanand, but you have to understand he comes from a Muslim family. तो एक बार कोशिश करते हैं आश्रम में अंदर जाने के लिए, his block, बोलते तुम मुसलमान हो. वो पहनावा लेके जाते थे. उस जमाने में झूठ नहीं बोलते थे, और कबीर महाराज तो झूठ क्यों बोलेंगे. तो वो ही वॉज नॉट अलाउड इवन इनटू द गेट. मगर एक संत को पता है ना, रामानंद जी को पता है कि एक संत ने अवतार ले लिया है, उसको उनका जरूरत है, ये भी उनको पता है. मगर ही डजंट वांट टू डिस्टर्ब द इक्वेशन. करुणा करना भी है, मगर इस तरह से करना है कि किसी को पता भी न चले. ये गुरु को भी पता है. उनके मन में, कबीर महाराज के मन में, बच्चे के मन में तप बढ़ रहा है कि मुझे गुरु का अनुग्रह चाहिए, गुरु का कोई दीक्षा मिल जाए. मुझे इस जिंदगी में रहना नहीं है, इस तरह से मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना नहीं है. मुझे गुरु का आश्रय लेना है और मुझे उसी तरह से जीवन को व्यतीत करना है. वो ऐसे उस मन में है वो बच्चे का. कुछ दिन ना डिस्टेंटली वो दूर से देख रहे हैं रामानंद जी को, उनका क्या दिनचर्या है, वो कितने बजे उठते हैं, गंगा घाट में जाके नहाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेते हैं. मतलब अरुणोदय इज नॉट अ सूर्योदय. अरुणोदय हैपेंस बिफोर द सन कम्स. जो रेज आते हैं उसके पहले वाला जो 45 मिनट्स है इस ब्रह्म मुहूर्त, उसमें नहाना चाहिए हम सबको. हम सिर्फ दिवाली के दिन नहाते हैं उस टाइम में, वी शुड डू दैट डेली. तो ब्रह्म मुहूर्त में रोज नहाने के लिए जाते थे गंगा घाट. वो एक रूट लेके जाते थे. सो ही इज ऑब्जर्विंग, द बॉय इज ऑब्जर्विंग, कबीर एज अ बॉय इज ऑब्जर्विंग.
तो रोज उस तरह से जा रहे हैं, तो एक दिन ना उनको रहा नहीं जाता है, वो सोचते हैं कि अभी जो होना है हो जाने दो, मैं क्या करूंगा, वो घाट से जब उतर रहे हैं, इज क्लाइंबिंग डाउन द स्टेप्स, आई विल गो एंड स्लीप, अंधेरा होता है ना उस समय में, अंधेरा रहता है, आई विल गो एंड स्लीप ऑन दैट स्टेप्स, उनका पैर मेरे सिर पे लग जाने दो, पैर लगने के बाद वो जो भी बोलेंगे वो मैं अपना गुरु मंत्र मान लूंगा, वही मेरे लिए दीक्षा है। हमारे पैर में अगर लगता है, हम क्या बोलते हैं, ओ गॉड, ओ शिट, दैट इज व्हाट वी विल से, राइट। हमारे पैर को अगर कुछ लगता है, ही रिस्क दैट, ही सेड अगर वो ओ शिट बोलेंगे तो भी वही मेरे लिए गुरु मंत्र हो जाएगा। मगर वो तो रामानंद स्वामी थे, राइट, ही विल नॉट, अपशब्द तो कभी बोलेंगे नहीं। तो इस हेतु जाके एक दिन सुबह सो जाते हैं, वहां पे लेट जाते हैं, सोते नहीं लेट जाते हैं। रामानंद गुरु को भी पता है, राइट, कि आज कबीर वहां पे सोए, अनुग्रह करने का उन्होंने भी तय कर चुके हैं, जिस तरह जहां पे जाके वो लेटे हैं उसी तरह पे जाते हैं, धीरे से पैर रखते हैं सिर पे और हटा लेते हैं। हटाते वक्त ही से राम 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 राम, उनके मन में हमेशा राम चलता था। कौन हो बेटा, इज व्हाट ही आस्क्स। कबीर गेट्स अप एंड ही सेज, मैं आपका शिष्य हूं, बहुत दिनों से आपका दर्शन लेना चाह रहा था और आपसे दीक्षा लेना चाह रहा था, मुझे आपने दीक्षा दे दी, राम राम करके दीक्षा दे दी। रामानंद स्वामी also blesses him because he knows he has already created a saint, one of his jobs is already done, right। एक संत का अवतार हो चुका है, उसको संत के मार्ग में लगाने का काम भी हो गया है, राइट। तो उसे आशीर्वाद देते हैं। कबीर महाराज goes and starts narrating on राम 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 का पूजा करना चालू कर देते हैं। That is the moment when he sings this bhajan, okay। He says, he gives, हमको गुरु या संत का मनस्थिति कैसे पता चलेगा, वो खुद जब बताएंगे तो ही हमें पता चलेगा, राइट, उनकी मनस्थिति। तो वो खुद गा के उन्होंने बताया, उन्होंने बोलते हैं, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु देखत नाही। गुरु कृपा अंजन मतलब मेरे, अंजन इज दैट काजल, गुरु कृपा का काजल, गुरु ने कृपा करके काजल लगाया है, अभी मेरा दृष्टि बदल गया है, अभी मुझे क्या दिख रहा है, अभी मुझे सिर्फ राम दिख रहे हैं। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु देखत नाही। अंदर रामा बाहर रामा, जहां देखूं वहां राम ही रामा, ओके, दैट इज व्हाट कबीर महाराज इज सिंगिंग। जागत रामा सोवत रामा, सपन में देखूं राजा रामा, कहत कबीर अनुभवनी का, जिद देखे वो राम सरी का। इसे जहां देखूं, गुरु कृपा अंजन मुझे मिला, गुरु कृपा मुझे मिला है, वहां से मेरे को, मेरा दृष्टि बदल चुका है, मुझे सिर्फ राम दिख रहे हैं सब जगह पे, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, अंदर बाहर, सब में राम दिख रहे हैं। जिद देखूं वहां वो राम सरी का, सब राम के जैसे हो गए हैं, इज व्हाट कबीर महाराज सिंग्स। तो टेक्निकली द लैंग्वेज is something that fits Kabir Maharaj. Eknath Maharaj technically didn't speak that language in my humble opinion, and it also matches this story because उनको राम का कृपा अंजन पायो मेरे भाई, because एकनाथ महाराज को जो गुरु कृपा जो हुआ था वो दत्त गुरु का हुआ था, वो विठल का हुआ था। It was not of दत्त गुरु ने विठल का दर्शन दिलवाया था, it was not of Ram, okay। So technically even as a story it doesn't fall in line, so it falls more appropriate, feels more appropriate to be Kabir Maharaj's song. The reason why I covered this in elaborate is because one shouldn't misunderstand। हेमत पंत जैसे एक दिग्गज ने अगर सच्चरित्र में लिखा है, एकनाथ महाराज ने, सारे गुरु एक ही हैं, I am not doubting that, I am just presenting my view, that's all, I am not refuting anything। इस तरह से साईं बाबा ने हेमत पंत पे अनुग्रह किया कि वो भजन गवा के ही ensured that हेमत पंत will not only think of Ram, he will think of either Kabir or of Eknath Maharaj, depending on whom he thought of, and इस तरह से राम का उन्होंने उन पे अनुग्रह करवाया। Thought on this beautiful story I will end today's session, although I told I only covered till 11, I have already covered till 11:25, okay। अगला सेशन विल बी ऑन सैटरडे, ओके। आई विल अनाउंस द टाइम ऑन द ग्रुप बिकॉज संडे को मैं हूं नहीं, और अगला सेशन में एज आई सेड आई वुड लाइक टू डू अ पूर्ति ऑफ बाबा's चरित्र पार्ट 1, पार्ट 2 जब उनका अनुग्रह हो तो बाद में लेंगे। अगर आप ओके हैं, नो क्वेश्चंस, देन वी विल स्ट्रेट अवे गो टू हनुमान चालीसा। यू आर ओके? या, थैंक्स। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी,
वरणौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जग दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोहि अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरही हनुमत सेई सर्व सुख करही। संकट कटै मिटै सब पीड़ा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। के बोलो हनुमान की जय। धन्यवाद धन्यवाद।